Good morning, everyone. Today, as we decided earlier, we have a very special agenda on hand, partnership accounting. As a topic which is relevant and important for class 12, graduation students, MBA students, CA Foundation, CS Foundation, or any other commerce course where you will be introduced to these topics of accounting. So, we are starting with this, and if you're the first time user, don't forget to subscribe the channel. चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा फॉर द रेगुलर अपडेट्स एंड डू लाइक द वीडियो. लेट्स स्टार्ट. What is partnership? Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. Partnership क्या है? It is a relationship. Relationship के लिए कितने लोग चाहिए minimum? Two. That means minimum two people are required for partnership business. Then comes, it has to be, and there has to be an agreement among them. If there is no agreement, that means what? They are not agreeing to work with each other. तो agreement होना जरूरी है. That agreement can be written, can be oral. ठीक है? Then किस बात का agreement? That they will share the profits and losses. कहाँ से आने वाला profit loss? A lawful business carried on by them. It has to be a legal business. और वो सब मिल के बिजनेस करेंगे या फिर कोई एक बंदा करेगा बाकियों को रिप्रेजेंट करेगा. On the basis of this definition, we can summarize a few features. You'll see that. And every single member, हर individual member को हम क्या बोलते हैं? Partner. और collectively उनको क्या बोलते हैं? Firm. और जिस नाम के अंडर वो काम करते हैं उस बिजनेस के नाम को क्या बोलते हैं? फर्म्स नेम बोलते हैं. क्लियर? नाउ on the basis of that definition, see these features. Two or more people are required. Agreement has to be there. Agreement आपका oral हो सकता है, written हो सकता है. Written agreement को हम लोग partnership deed बोलते हैं. अभी आपको बताया जाएगा. Then it has to be a lawful business. Business कैसा होना चाहिए? Lawful. अब हम लोग ये बिजनेस तो नहीं कर सकते कि चलो भाई मिल के वी विल रॉब द बैंक, हम बैंक को लूटेंगे और पैसे बांट लेंगे. इज दैट अ बिजनेस और इज दैट अ पार्टनरशिप? नो, इट इज नॉट. क्यों? बिकॉज इट इज नॉट लीगल, इट इज नॉट लॉफुल. ओके. देन दे शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड देन द लायबिलिटी. मतलब अगर पार्टनरशिप बिजनेस में फंड्स कम पड़ जाते हैं, लिसन वेरी केयरफुली, अगर पार्टनरशिप बिजनेस में फंड्स कम पड़ जाते हैं तो व्हाट विल हैपन? द पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स विल बी कॉल्ड फॉर दैट. तो मतलब क्या हुआ? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है हर पार्टनर की एक दूसरे की तरफ. एंड चिल्ड्रन, सीए फाउंडेशन में या ऐसे किसी भी प्रोफेशनल कोर्सेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. वो कहते हैं कि व्हाट इज द अल्टीमेट टेस्ट फॉर पार्टनरशिप. अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप है उसके लिए अल्टीमेट टेस्ट क्या है? That is mutual agency. See the fourth point here. Mutual agency. मतलब suppose three partners are there, A, B, C. हर पार्टनर एक दूसरे का रिप्रेजेंटेटिव है और हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है. ओके. सो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप इज देयर बिटवीन ईच वन ऑफ देम. क्लियर है? नाउ व्हाट इज डील? पार्टनरशिप, as we know, comes in existence with the help of an agreement. वो agreement written या oral कैसा भी हो सकता है. If it is written, it is called, yes, partnership deed, and that contains all the possible information relating to the business and affecting the business. Okay, starting from the capital employed to all accounting policies, interest and capital, drawings, profit loss share, every possible thing you think of it, and it is there in the partnership. Okay. Now we can alter it, we can change it with the consent or the permission from all the partners. And see, these are the points that you can summarize as contents of the deed. Now just take a look around and see the last one. अगर पार्टनरशिप डीड मेंशन करती है जो
कंडीशन जैसी कंडीशन हमको वो फॉलो करनी, एज सिंपल इज दिस, बेसिक रूल इज दिस. बट इफ partnership deed is not there, or if partnership deed is there but it is silent on some topics, तो क्या होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी फॉलोड. पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है भाई? या तो आप डीड बना लीजिए एंड यू डू अकॉर्डिंग टू दैट, फाइन. आइदर यू डू द डीड एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट. अगर आपने डीड नहीं बनाई या बनाई लेकिन कुछ पॉइंट्स पे साइलेंट है, तो फिर झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है. फिर वो सुनो जो हम कह रहे हैं. और हम कौन है यहाँ पे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. क्लियर? सो इफ देर इज नो डीड, what happens? The profit and loss is equally shared. There is no interest on capital, no interest on drawings, no salary commission to the partners, and if a partner has given a loan to the firm, तो उस पर 6% per annum का इंटरेस्ट चलता है. ओके, दैट इज वॉट इज द रूल to be followed when there is no deed. Now, when we come to the accounting part of it, remember in accounting there are two ways of doing it. First is fixed capital method, second is fluctuating capital method. Now, what happens when we talk about fixed capital method? The name says fixed capital. कैसी capital? Fixed. अब यहाँ पे क्या होगा? These two accounts are made, partners capital account and partners current account. Clear? अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? सिर्फ कैपिटल आएगी. एडिशनल कैपिटल अगर आ रही है तो वो आएगी. अगर परमानेंट विड्रॉल हो रहा है कैपिटल का तो वो आएगा. दीज थ्री थिंग्स: इनिशियल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल ऑफ द कैपिटल. सिर्फ ये तीन चीज़ें आएंगी. कैपिटल अकाउंट फिक्स रहेगा, इट विल नॉट मूव, इट विल रिमेन एज इट इज. नाउ व्हाट अबाउट द एडजस्टमेंट्स? पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, सैलरी, कमीशन, सो मेनी थिंग्स आते हैं. पार्टनर्स का लेन देन हिसाब किताब कैसे होगा? फॉर दैट वी हैव yes the other account that is called partners current account. ठीक. Now the most important thing, these 2 points. See, partners capital account हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा unless otherwise situation, वो बहुत कभी कभार होती है. बट पार्टनर्स करंट अकाउंट कैन हैव डेबिट एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस, दोनों में से किधर भी जा सकता है. ठीक. नाउ वी कम टू द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. अभी उधर क्या था? कैपिटल वाज फिक्स्ड. इधर क्या है? Capital is fluctuating. That means what? That means there is only one account, capital account. उसमें capital भी है, उसमें सारे adjustments भी हैं, तो obviously capital will go fluctuating. ठीक है? It can have a credit or debit balance as the case may be. And remember children, जब तक question कहेगा नहीं, by default आपको यही मेथड फॉलो करना है. फिक्स कैपिटल मेथड तभी करेंगे जब क्वेश्चन बोलेगा, या क्वेश्चन कहेगा कि नहीं भाई करंट अकाउंट भी बनाइए, देन वी आर गोइंग टू डू द यस फिक्स. ओके. नाउ सी द फॉर्मेट. दिस इज कैपिटल अकाउंट. इट starts with opening balance here. Fresh capital or additional capital is here. Then this is the opening capital, this is a fresh capital, and permanent withdrawal of the capital. As a result, what happens is this is the closing balance. And what about the current account here? See, capital account, करंट अकाउंट एक कैसे अकाउंट है? नेचर क्या है? पर्सनल अकाउंट है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है. तो वॉट एवर इज गिवन टू द पार्टनर, जो भी हम पार्टनर को देते हैं उसकी कैपिटल बढ़ाता है, जो भी हम पार्टनर से चार्ज करते हैं कैपिटल को घटा देता है. क्लियर? सो वॉट एवर इज गिवन टू द पार्टनर इज सी क्रेडिटेड. सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, any kind of profit share, all these things are credited. फिर बिजनेस से जो ड्राइंग्स, रेगुलर ड्राइंग्स, रूटीन ड्राइंग्स की बात हो रही है, परमानेंट विड्रॉल की बात नहीं रही, रूटीन ड्राइंग्स,
routine drawings are placed here, their interest on drawings is there, if there is any loss that is adjusted on the debit side, and then either this side और this side किधर भी बैलेंस आ जाएगा और ये क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा. This is how the format of fixed capital method, capital account and current account is seen. Then we come to the fluctuating method. अब गौर से देखिएगा, आई एम गोइंग बैक टू द फिक्स्ड अगेन. एक बार फिक्स्ड को देखिए फिर आइए इस पे. ये द फिक्स्ड अभी क्या है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को मर्ज कर देना है, क्लब कर देना है. और देखिए ये बन गया, आपके पास ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है, ये फिर फ्रेश कैपिटल है, सैलरी कमीशन जो भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयर, ड्राइंग्स इधर आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लॉस, एंड देन कम्स व्हाट, this balance. Okay, so that is how the account is prepared or placed. Clear? If do note down these differences. Theory questions के लिए बहुत important हैं. These points are essential. Number of accounts fixed में कितने होते हैं? Yes, 2. Here only 1. Adjustments सारे के सारे कहाँ किए जाते हैं? करंट अकाउंट में. इसमें कहाँ किए जाते हैं? यस, कैपिटल अकाउंट में किए जाते हैं. फिक्स बैलेंस है यहाँ पे फिक्स नहीं, क्योंकि ये फ्लक्चुएट करता रहता है. ठीक है, फिक्स कैपिटल में हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो होगा कैपिटल अकाउंट का. यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कैसा भी हो सकता है, क्योंकि फ्लक्चुएट करता है. ठीक. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉफिट्स, जैसा कि हम नॉर्मली बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट वैसे ही बनता है. उसके बाद जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का एक एक्सटेंशन होता है पीएल अकाउंट, सिमिलरली वी हैव एन एक्सटेंशन टू द पीएल अकाउंट ऑल्सो. यस, ट्रेडिंग से एक्सटेंड हुआ पीएल, पीएल से एक्सटेंड हुआ पीएल एप्रोप्रिएशन. व्हाट इज पीएल एप्रोप्रिएशन? सी दिस, पीएल एप्रोप्रिएशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट. और क्यों बनता है? सो दैट प्रॉफिट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड और एप्रोप्रिएटेड. ठीक है. See the format. We have the opening balance if it is a profit starting from here, if it is a loss starting from this side. अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी अमाउंट पार्टनर को दिया जाता है फर्म के लिए एक्सपेंस है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब फर्म के लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, इसलिए वो डेबिट हो जाएगा. पीएल एप्रोप्रिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट. ठीक है. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पार्टनर को लोन दिया गया है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर, और फिर ये क्या है? दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस. If the balancing figure comes on this side, it is loss. If it comes on this side, debit side, it is profit. Okay. Now just take a small example. There are two people, Amitabh and Babul. 3:2 का profit sharing ratio है, 50 और 30 की capital दी हुई है. Interest on capital is 6% per annum. बाबुल को 2500 की salary दी जाएगी. During the year, profit before interest on capital, but after charging his salary is 12,500. अब 5% का प्रोविजन देना है उसको कमीशन के तौर पे मैनेजर को, और पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने को बोला जा रहा है उससे. अब ध्यान से देखिएगा, बिफोर वी स्टार्ट विद द थिंग, जस्ट रिमेंबर प्रॉफिट कैसा है? प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सैलरी इज दिस. तो अब जब हम कभी भी आफ्टर चार्जिंग सैलरी अगर दी है, तो इस प्रॉफिट में we will add this salary and show it in the PL appropriation. To start with, just take a look here. This and this. Clear? अब आप यहाँ पे बाबुल की सैलरी दिखाएंगे. In case you will put 12,500 here,
My writing with these cursors is a bit horrible. Please bear with this. लेकिन अभी अगर ये 12,500 लिखा जाएगा बेटा तो क्या होगा? This will be removed. This will be removed. मतलब कि 12,500 की सैलरी, 12,500 प्रॉफिट है आफ्टर सैलरी, तो सैलरी तो शो करनी पड़ेगी डेबिट में, इसलिए उसको यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे एंड वी विल डू इट दिस वे. क्लियर? देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन, जैसा कि कैलकुलेटेड अमाउंट था हमारे पास, परसेंटेज के बेसिस पे हमने निकाल दिया. फिर 5% मैनेजर की कमीशन है, 15,000 रुपये का प्रॉफिट है, 5% की कमीशन 7,500. बैलेंस अमाउंट इनके बीच में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 3:2. जस्ट रिमेंबर दिस 12,500 वाला पॉइंट. ओके, सो इट विल बी फॉलोड एज एंड व्हेन द क्वेश्चन सेज एनीथिंग. क्लियर? एंड देन वी गो फॉर द कैपिटल अकाउंट. दोनों का अलग अलग समझ लें. लेटर ऑन जैसे मल्टी कॉलम कैश बुक बनती है वैसे यू कैन डू द थिंग सेपरेटली, सॉरी जॉइंटली. Now see, we have the opening balance here. पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, प्रॉफिट मिला, आपने बैलेंस कर दिया. यहाँ पे क्या है? बाबुल को कैपिटल है, सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और प्रॉफिट है. अमिताभ को कोई सैलरी नहीं है बट ही इज बीन गिवन द सैलरी, सो यू बैलेंस इट. एज सिंपल एज दिस. That is how it is done. This is what? Fluctuating. See, I am coming back to this slide. Reason is this. Remember, this is fluctuating. Don't forget this. By default, fluctuating ही follow करेंगे. अगर question कुछ और कहेगा तो हम वो करेंगे. ठीक है? PL appropriation वैसे ही बनेगा हर बार. पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही सारे एडजस्टमेंट्स आ गए. And that is what the fluctuating method is. Now we take up a fixed capital method. A question. Simi and Sonu दो पार्टनर्स हैं, 3:1 का रेशियो है. प्रॉफिट इज 1,50,000 फॉर देम. ठीक है? अब आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए हैं, करेंट अकाउंट के बाद. देखो अगर करेंट अकाउंट दे दिया इसका मतलब कि हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करने जा रहे हैं. इनकी ड्राइंग्स दी हुई हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोला गया 6% पर एनम ऑन एवरेज फॉर 6 मंथ्स. तो ठीक है, क्योंकि पता नहीं कब कितना विड्रॉ किया, तो ठीक है वी कैन टेक द एवरेज लाइक दिस. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशंस इलेबोरेटेड होती हैं थोड़ी, वो हम लोग बाद में सीखेंगे. अभी इनिशियली आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है दैट हाउ एग्जैक्टली द फॉर्मेटिंग इज डन. ठीक है? और पार्टनर्स की सैलरी दी हुई है. ओके, नाउ जस्ट टेक अ लुक ऑफ द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये आपका स्टार्टिंग प्रॉफिट है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 20,000, 6%, 6/12. सिमिलरली सोनू के लिए 15,000 पे, टोटल हो गया 1050. ठीक? पार्टनर्स की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इसके बाद बेटा ये कहाँ से आया? दिस इज बैलेंसिंग फिगर 1,25,550. इसको पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में बांटा आपने? 3:1. So that is what is the distribution. See, PL appropriation account, डेबिट में क्या जाएगा? Yes, expenses. किसके expenses? फर्म के expenses. क्रेडिट में क्या जाएगा? फर्म की इनकम. डोंट फॉरगेट दिस, क्योंकि हम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं? पार्टनर्स के लिए नहीं कर रहे हैं, फर्म के लिए कर रहे हैं. और अब देखिए इनके करेंट और कैपिटल अकाउंट्स. आप इस तरह से मल्टी कॉलम बनाइए, इट विल सेव योर टाइम. ओपनिंग कैपिटल आएंगे, एडिशनल कैपिटल या परमानेंट विड्रॉल तो था नहीं, उसी अमाउंट से इसको बैलेंस कर दिया. ठीक है?
Then comes current account का opening balance here, पार्टनर्स की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो पीएल एप्रोप्रिएशन था पीछे उसका, यस उसका बैलेंस ये आ गया, ये अमाउंट्स आ गए। ड्राइंग्स आपको दी हुई है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने कैलकुलेट किया पीछे 600 and 450, and then you have this balancing figure. So this is how the basic sequencing of the transaction is done when we talk about PL appropriation and, yes, PL appropriation and exactly partners capital account and the current account. Okay, now with this we conclude the introduction to partnership. Now I'm sure you must have found it interesting. अगर कहीं पे भी डाउट हो रिवाइज करिए, रीप्ले करिए इस वीडियो को और ध्यान से देखिए. These are very simple word explanations जो कि कतई आपको परेशान नहीं करेंगे, and you will find it very easy to understand. Okay, in the next lecture we are going to take up 11th also simultaneously. Alternatively we are going to take up the classes. In the next lecture we are going to talk about journal, how to prepare journal. We will talk about some some good number of questions and also the concept of discount in accounting. Okay, don't forget to like the video, share and subscribe the channel, and do press the bell icon. Okay, and please stay in touch. Whatever you have to express, please feel free for that. बिल्कुल कनेक्ट करिए, चाहे जैसे भी करिए. तब तक सुरक्षित रहिए. गॉड ब्लेस यू ऑल.